ठीक है, तो पहले वीडियो देख लेते हैं। This process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the In case of any doubt, just raise your hand बीच में ही, ठीक है? cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the ठीक है, यही मैं चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इफ यू सी, जो नॉर्मल सिचुएशन में जब क्रोमोसोम रहेगा तो वो ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में रहेगा। दिस जो आप देख रहे हो ना, वो इस थ्रेड लाइक फॉर्म में रहेगा। जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हो अभी, इस फॉर्म में रहता है। और ये जो बॉल्स दिख रहे हैं येलो कलर के, दीज आर दी हिस्टोन प्रोटीन्स। दीज आर दी हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड हमारा डीएनए पूरा कॉइल हो जाता है, एंड देन उससे क्या बन जाता है? बन जाता है हमारा क्रोमोसोम। nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach by proteins in their centromeres called kinetochores to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वहां पर तो प्लांट से एनिमल सेल्स में तो एक फरो, एक रेज आ जाती है जो बाहर की तरफ से अंदर कट कर जाती है। सेल इसमें प्लांट सेल्स में क्या होता है? सेल प्लेट बनती है, एंड देन सेल प्लेट डिवाइड कर जाती है।
Plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is... अब ये है थोड़ा, अभी जो ये वीडियो में जो पार्ट आएगा ये थोड़ा हायर ऑर्डर है, मतलब आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है फॉर नाउ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स, वो मतलब वो चेक पॉइंट्स वो पूछ लेते हैं उससे, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि देयर आर सम सिक्योरिटी गार्ड स्टैंडिंग बिटवीन द G1 एंड S फेज, ठीक है। G1 से S फेज में कोई एंटर करेगा तो बीच में सिक्योरिटी गार्ड उसको चेक करेगा कि भाई हाँ तेरे पास, डू यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल, आर यू रेडी, उससे कंफर्म करेगा कि तुझे अंदर जाना है, तुझे माइटोसिस करना है कि नहीं करना, उससे कंफर्म करेगा, और वो बोलेगा कि हाँ मुझे करना है, तो ही वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। ऐसे हमें इसमें कौन था ये भाई, ऐसे मत करो, म्यूट रखो अपने आप को प्लीज, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि सर्टन चेक पॉइंट्स आर देयर, देयर आर 3 चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स पे बस क्या होता है कि देयर आर सर्टन एंजाइम्स, ठीक है, वो लोग क्या चेक करते हैं कि इज द सेल कंप्लीटली रेडी टू अंडरगो माइटोसिस। तो ये सारे चेक पॉइंट्स है, सिर्फ एक बार देख लो, आपको इसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। Is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all 3 phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear, and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself. ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। माइटोसिस है ये तो सिंपल ही है, इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, एक एज अ स्टोरी, बिकॉज वीडियो से क्या थोड़ा और जो डाउट्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं ना, कि आपको और डिटेल में समझ में आ जाता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, आप प्रॉपरली इमेजिन कर पाते हो कि क्या क्या है। करेक्ट है ना? कोई डाउट है भी आपको? बताओ। माइटोसिस क्लियर है? माइटोसिस क्लियर है? आर यू एबल टू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? बोलो यार। Just give me 1 minute. ठीक है, तो अभी
सिमिलर वे में हम देखेंगे माइटोसिस की वीडियो, देन अगर कोई डाउट रहा तो हम उसमें भी क्लियर कर लेंगे, बिकॉज माइटोसिस में आई थिंक आपको थोड़ा डाउट कल था, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास का लास्ट था, मतलब ऑलमोस्ट हम लास्ट उस पे थे, इसलिए तो एक बार देख लेते हैं इसको, कुछ डाउट रहा तो वी विल क्लियर इट। Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. ओके, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है, अगर कल या नहीं देखी, तो इसमें आप देखोगे ना ये जो डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है, एज वी नो कि मियोसिस 1 होने वाला है, मियोसिस 2 होने वाला है, बट ये चीज ध्यान में रखना कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा, मियोसिस 1 में होगा। क्या डीएनए भी ज्यादा डीएनए एक ही बार कॉपी बननी है ना, डीएनए ज्यादा बार तो रिप्लेस करेगा नहीं, तो डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ इसमें होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मियोसिस 1 में। The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous... अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहे हैं कि क्या चेंजेस ऐसे होते हैं जो मियोसिस और माइटोसिस को डिफर करता है। तो ये बोल रहे हैं कि देयर आर 2 चेंजेस। पहला चेंजेस होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आएंगे, ठीक है, तो वो ये दिखा रहा है। Pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes. ये पार्ट समझ में आया, क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ? क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ समझ में आया? ओके, वापस से चला देते हैं, ध्यान से देखो। The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned,
so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Okay, यहाँ पे भी डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो रहे हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल टुगेदर. समझ में आया? सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल टुगेदर. व्हाट द थिंग इज सेपरेटिंग इज होमोलोगस क्रोमोसोम. जो इनिशियली जब साइनेप्सिस हुआ था, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आसपास अपने पास आके चिपक गए थे और उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया था. ठीक है, फिर वो मेटाफेज में आके एक लाइन में अलाइन हो गए. ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स पे आके स्पिंडल फाइबर नहीं लग रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे लग रहा है. एक इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे और एक इस पे काइनेटोकोर पे जाके वो लग रहा है. कौन? स्पिंडल फाइबर. और फिर ये दोनों फर्स्ट मियोसिस में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, नॉट द सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles इसको वापस से देखो, ये important diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes phase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into four haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3
can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction. ठीक है, इसमें मियोसिस समझ में आया अभी आपको? इस मियोसिस वाला पार्ट क्लियर कि कैसे हो रहा है कि मियोसिस फर्स्ट में homologous chromosomes are separating, and in meiosis 2 the sister chromatids are separating. That's why we finally get n number of chromosome. ठीक है, अगर आपको वीडियो अभी भी नहीं समझ में आया तो जस्ट इसको एक दो बार और देखो, इट विल डेफिनेटली क्लियर, बिकॉज इससे ज्यादा वर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है किसी किसी कंसेप्ट पे, क्योंकि ये वीडियो से ही समझ पाओगे। अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट फिर भी हम करते हैं वर्ड टू वर्ड भी, ठीक है। आई जस्ट ओपन द शीट नाउ। ठीक है, तो विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट शीट कि आप लोगों को ये, आई होप ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा ना, ऑल द 5 स्टेजेस। ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के जो 5 पार्ट्स थे, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस, पार्ट क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं था कल, इसमें तो हमें पता है क्या क्या हो रहा था। क्रॉसिंग ओवर या क्लियर, क्रॉसिंग ओवर हमने कल कर लिया था, बाइवेलेंट टेट्राड बनना, डाइकिनेसिस। यहाँ पे कल आप लोग कंफ्यूज हुए थे बिकॉज आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा था कि सेपरेट कैसे कैसे होगा, वो अभी आपको वीडियो से आई होप समझ में आ गया। तो विल स्टार्ट विद मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 खत्म हो गया है, प्रोफेज 1 खत्म हो गया है। प्रोफेज 1 खत्म होने के बाद देखो क्या क्या हुआ होगा, मोस्टली क्या हुआ होगा प्रोफेज 1 खत्म होने के बाद कि जो सेंट्रियोल्स थे अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा डीएनए था, वो जेनेटिक मटेरियल था, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन चुका है। क्रोमोसोम की कॉपी तो ऑलरेडी एस फेज में बनी चुकी थी, ठीक है। क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, हमारे पास डबल द नंबर ऑफ डीएनए है अभी हमारे पास। अब क्या होना है उसमें देखो, अब क्या होगा कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, साइनेप्सिस जिसको हम बोलते हैं। देखिए दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट देन माइटोसिस। माइटोसिस में ऐसा नहीं हो रहा था, बट मियोसिस में हो रहा है। मियोसिस में भी प्रोफेज के अंदर हो रहा है। उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आसपास आते हैं एंड देन फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रोफेज 1। तो ठीक है, क्रॉसिंग ओवर सब हो गया। अब वो मेटाफेज में क्या करेगा, जो बाइवेलेंट हमारे क्रोमोसोम्स हैं सेंट्रल लाइन इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप तो हमें पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर देंगे, नॉट द सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग कर देंगे। तो यही चीज होनी, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंस ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटिकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो ये मेंशन किया हुआ है इसमें, काइनेटिकोर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड उनको सेपरेट कर देता है वो, नॉट द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, देन एनाफेज तो हमेशा सेम ही होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। देखो ये अभी भी वापस से वही पॉइंट रिपीट कर रहा है कि भाई सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमियर्स। क्रोमैटिड्स अभी भी सेम है। सिस्टर क्रोमैटिड्स कब सेपरेट होंगे, इन मियोसिस 2, सॉरी हाँ इन मियोसिस 2, करेक्ट, इन मियोसिस 2 में वो सेपरेट होंगे, ठीक है। क्लियर है, एनाफेज क्लियर हो गया। टीलोफेज तो लास्ट स्टेज होती है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लगेंगी, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा, ठीक है, सारे ऑर्गेनेलीज वापस आने लगेंगे, सो ऑल दैट थिंग।
The nuclear membrane and nucleus reappear. Cytokinesis follows this and called as dyad of cell. दो cells बन जाते हैं, एक cell से दो cell बन जाते हैं, dyad of cell. The stage between the two meiotic division is called as interkinesis and is generally short-lived. ठीक है, interkinesis बोल रहे हैं. अब interkinesis किसको? Interphase interkinesis में don't get confused. Interphase is interphase. दो cell division mitosis से पहले जो माइटोसिस, जो भी सेल डिवीजन से पहले जो भी सेल जिस स्टेज में रहेगा, दैट इज इंटरफेज. ठीक है, बट इंटरकाइनेसिस इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो फेज होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो फेज होता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. ठीक है, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस. ठीक है, इसमें देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिकॉज क्यों? डीएनए तो हमारा एक ही बार रेप्लिकेट होगा. डीएनए की कॉपी क्यों बननी है? डीएनए की कॉपी ऑलरेडी बन चुकी है, डीएनए एक बार रेप्लिकेट कर चुका है. वी ऑलरेडी हैव सिस्टर क्रोमैटिड्स. अभी बस हमें सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है. इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1. ठीक है, प्रोफेज 1 में क्योंकि देखो कितने 5 स्टेप्स आते हैं, बट इन मियोसिस 2 का जो प्रोफेज होता है दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी आइडेंटिकल टू माइटोसिस. सिर्फ माइटोसिस मियोसिस के समय पर ही क्रोमोसोम कंडेंस होता है. यस हाँ, बाकी नॉर्मली अभी जो तुम्हारे सेल्स होंगे ना वो एकदम मतलब फ्रीली थ्रेड लाइक क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं. फ्रीली थ्रेड लाइक क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं बिकॉज यार क्रोमोसोम का फंक्शन, मतलब फंक्शन नहीं बोल सकते उसको, बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी हो जाएगी और उसको सेपरेट होना बहुत इजी हो जाएगा. नहीं तो यार थ्रेड लाइक होते हैं वो, उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे ना. इधर किसको भेजना है, इधर किसको भेजना है, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा. तो उसके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम. तो हमारा जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो डेफिनेटली कॉइल करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा. बिकॉज वैसे जेनेटिक मटेरियल काफी बड़ा हो जाता है, बट जब उसको कंडेंस करके टाइट पैकिंग करते हैं जब प्रोटीन्स के अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड, तब जाके क्रोमोसोम बनता है. क्रोमोसोम मतलब छोटा सा, एक छोटा ऑर्गन, नॉट ऑर्गन, एक छोटा मॉलिक्यूल अगर आप बोल दो, एक छोटी चीज जिसके अंदर हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड है. ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस के टाइम पे ही क्रोमोसोम कंडेंस होता है. यस, बाकी टाइम पे वो अपना फ्रीली घूमता रहता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, मियोसिस 2 पे चल सकते हैं. Should we go ahead with meiosis 2? Please confirm everyone. ठीक है, it is very simple. अभी meiosis 2 तो एकदम simple है, exactly same as mitosis. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. लिख दिया इसने यहाँ पे. The nuclear membrane disappears by the end of prophase. The chromosome again become compact. ठीक है, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? क्रोमोसोम को क्रॉसिंग ओवर करने का जरूरत है. क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगा तो वेरिएबिलिटी नहीं आएगी ना, फिर तो हम सब एक जैसे दिखते. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो यू विल लुक आइडेंटिकल टू योर पेरेंट टू योर ग्रैंड पेरेंट. सारे आइडेंटिकल दिखेंगे, सब एक जैसे दिखेंगे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो. क्योंकि देखो माइटोसिस, इमेजिन करो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है, इमेजिन करो क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होता तो फिर क्या होता? हमारे सारे सेल्स एक जैसे होते, जैसे अंदर अभी जो हमारे सोमैटिक सेल्स करते हैं, सारे सेल्स एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, बट एग्जैक्टली सेम वो कभी नहीं दिखते हैं. वो यस दे आर आइडेंटिकल बट एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं हो सकती है. एंड वो ट्विंस वाला दैट इज अ डिफरेंट पंगा, दैट वी विल सी लेटर. ट्विंस का एक अलग वो इशू होता है. जुड़वा होते हैं, ट्विंस इज अ डिफरेंट थिंग. ट्विंस का एक अलग सीन होता है. एक मिनट, नहीं, जो पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्ट सिमिलर नहीं हो सकता है कोई. एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता है. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा बट फिर वो एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होगा, है ना. एग्जैक्टली सेम नहीं, मे बी द आई कलर, हेयर कलर,
एंड ऑल दोज थिंग्स एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज व्हाट ना, ये इसी ने आपको सारा अली खान ठीक, does Sara Ali Khan look like Saif Ali Khan? No, but more of her mother, right? But of course, she's a daughter of both of them, right? Saif and the other lady, जो भी है वो, उसका नाम याद नहीं मुझे. हाँ, exactly similar नहीं है, but variations तो हमें मिल सकते हैं ना. अरे वो वेरिएशन तो मिल सकते हैं, that is true. That is again one of the thing कि भाई आधे गेमेट्स क्योंकि वहां से आ रहे हैं, आधे यहाँ से आ रहे हैं, that is one of the thing. बट वहां से जो तुम बोल रहे हो जयदीप की, बट वेरिएशन तो हमें फीमेल गैमेट से मिल सकते हैं. यस, मिल सकते हैं. तो तुम बोल रहे हो कि मेल में क्यों होता है, तुम ये क्वेश्चन है कि तुम्हारा. अमृता, ओके, कोई नहीं पूछेगा अमृता. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम हैप्पी कि क्वेश्चन आ रहे हैं. वापस से थोड़ा और अपने क्लियर वर्ड्स में पूछो, क्लियर करो वर्ड्स. मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू आस्क. जयदीप के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली. मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉसिंग ओवर होता है इसीलिए वो मियोसिस है एंड माइटोसिस नहीं है. ठीक है, ये करो. मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसीलिए हम उसको मियोसिस बोल रहे हैं. क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हम उसको मियोसिस नहीं, हम उसको माइटोसिस ही बोलते हैं. एंड क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाना, जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाना. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है. वीडियो में उसने 2 पॉइंट्स तो तुम्हें बताएं. फर्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर एंड सेकंड इज दी अलाइनमेंट. जब वो मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जब अलाइन होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. इंडिपेंडेंटली जिसका मन करता है जहां भी लगना है वो वहां खड़े हो जाता है, और फिर वो आधे इधर चले जाते, आधे इधर चला जाते हैं. उनको कोई बोलते नहीं तू नंबर 2 पे लगना, तू नंबर 4 पे लगना, नहीं. दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, वही वही होता है. समझ रहे हो? क्रॉसिंग ओवर तो जरूरी है ना. क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो सब जो गैमीट हमारा बनेगा, जो गैमीट हमारा बनेगा दैट विल बी आइडेंटिकल टू पेरेंट, आइडेंटिकल बनेगा एकदम. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इफ इट इज स्टिल नॉट क्लियर देन contact me after the class. ह्यूमंस बिना रिलेशन के भी सिमिलर हो सकते हैं क्या? समझा नहीं मैं, कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो तुम साहिल? थोड़ा सा एलेबोरेट करो अपने क्वेश्चन को. कुछ पूछ रहे हो, कुछ लिख रहे हो? टू डिफरेंट पर्सन. एक मिनट आकांक्षा, लेट मी आंसर साहिल्स क्वेश्चन फर्स्ट देन योर्स. साहिल का था टू डिफरेंट पर्सन सर, ह्यूमन बीइंग. टू डिफरेंट पर्सन सर, ह्यूमन बीइंग रिलेशन के बिना सिमिलर हो सकते हैं क्या? दैट इज अगेन यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ना. जो योर क्वेश्चन इज अगेन गिविंग एनहांसमेंट टू आकांक्षा's क्वेश्चन, जो पूछ रहा है कि इज इट ट्रू कि ह्यूमन जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं? एक मिनट, आप इस
ओके, रियली सॉरी फॉर दिस। सर हमें इनके क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। हाँ, हमें आपको नहीं दिख रहे बिकॉज ये प्राइवेटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ ओके, तो साहिल योर क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि ओके हाँ, योर क्वेश्चन वाज कि मतलब जैसे इफ फॉर एग्जांपल इफ वी आर हियर, है ना, मैं या तुम यहाँ हो, समवन इन चाइना विल एग्जैक्टली लुक लाइक यू और समवन इन द यूएस विल एग्जैक्टली लुक लाइक यू। तुम ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? विदाउट एनी रिलेशन हाउ कैन बी समवन बी सिमिलर? So they can definitely be similar enough. They can be similar enough, but not exactly same. Okay, they can be similar. Of course, यार genetics सब genetics है. Everyone has ATGC, ATGC यही सारे enzymes हैं हमारे पास. ठीक है, can be a possibility ना, इतनी population है, there can be a possibility. ठीक है, but definitely there will. If you have seen that man who looks exactly like a Virat Kohli, that small guy. There is a possibility, right? He looks like Virat Kohli. There is a possibility. ठीक है, there is no need कि उनका कोई relation होगा या कुछ होगा, नहीं, जरूरत नहीं है. That is again because of genetics. हाँ जी, तो आकांक्षा का क्वेश्चन था, इज इट ट्रू कि हमारे जैसे दिखने वाले ज्यादा लोग होते हैं? अब दिस इज, आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रू है, बट या वी कैन नॉट से कि नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं. अगेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वेरी गुड. आई होप डाउट्स क्लियर है, तो आगे चलते हैं. मियोसिस काफी काफी डिटेल में पढ़ रहे हो मियोसिस तुम लोग. ठीक है जी, प्रोफेज में क्या होना है अभी तुम्हें पता है? प्रोफेज में क्या होना है? एवरीथिंग इज अगेन सेम. प्रोफेज में क्या होगा भाई बताओ? प्रोफेज 2 में क्या होना चाहिए? हु विल टेल मी? Sarita will tell me. Come on, Sarita, unmute yourself and tell me what will happen in prophase 2 of meiosis 2. Unmute yourself and please speak. I am waiting for your response. चलो किसी और को आता है तो हाथ खड़ा कर दो. कंप्यूटर में माइक नहीं है क्या? ओह ओके, नो प्रॉब्लम. समवन एल्स, किसी और, कोई और बताना चाहेगा प्रोफेज 2 मियोसिस 2 में क्या होगा? सर कौन? सर नॉट ही सर, और कोई? क्या सर? ठीक है सर. और कोई? आकांक्षा, यू तुम बोलो. या तुम भी कंप्यूटर हो? तुम पिछली बार भी गायब हो गई थी जैसे ही मैंने कुछ पूछा था. नॉट दिस टाइम. सर तब नेट हाँ हाँ चल तब रहा था. नहीं नो. हाँ बोलो अभी. बहुत मतलब आवाज नहीं आ रहा आपका, बट स्टिल थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है. प्रोफेज 2 इन ऑफ मियोसिस 2. तो फर्स्ट जैसे ही होगा ना? सही है ना कुछ? आपकी आवाज नहीं आ रही. सही है ना कुछ? प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 में आ रही है आवाज? आ रही है, बट yes, I am asking you what happens in prophase 2. Like प्रोफेज 1. Mute yourself. की आवाज ब्रेक हो रही है काफी. हाँ देखो, प्रतीक को सब पता है. प्रतीक काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो तुम. ठीक है, so I will explain, not explain, but we know what happens in prophase. prophase में एक ही चीज होती है, prophase में एक ही चीज होती है कि प्रोफेज में क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं जो डीकंडेंस्ड हैं वो कंडेंस्ड होंगे. हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होगी धीरे धीरे. हमारे जो सेंट्रोमियर्स हैं अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे और उनसे जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं वो निकल के काइनेटोकोर्स पे जाके अटैच हो जाएंगे. सेम चीज होती है हर प्रोफेज में, यहाँ पर भी वही हो रहा है. ठीक है, ओनली प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस
ओनली प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 वहां पर जाके थोड़ी चेंजेस होती हैं। क्यों होती है वहां पर चेंजेस? बिकॉज वहां पर इन्वॉल्व हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। ओके, देन अगेन मेटाफेज में अब क्या होगा? सेकेंड थिंग, मेटाफेज में क्या होगा कि अगेन जो क्रोमोसोम्स हमारे हैं, बिकॉज अब कभी जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं कंडेंस्ड हो चुके हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में हैं, अब वो क्या करेंगे? इक्वेटर लाइन पे अलाइन कर जाएंगे, अपने आप को इक्वेटर लाइन पे अलाइन कर लेंगे। ठीक है, इक्वेटर लाइन पे अलाइन कर लाएंगे एंड हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स है दे विल बी अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। नाउ पिछले वाले में क्या था? होमोलोगस क्रोमोसोम में अटैच होता था, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स में अटैच होगा। ठीक है जी। उसके बाद एनाफेज 2 में देखो क्या होगा। इट बिगिंस simultaneous splitting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together, allowing them to move to the opposite pole by shortening of the microtubules attached to the kinetochores. एनाफेज में तो एक ही चीज होती है कि मेटाफेज में जब वो अलाइन हो जाते हैं, एनाफेज में they just separate and move towards their individual poles, move towards their individual poles। तो एनाफेज में तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है ना। ठीक है, एनाफेज में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद टीलोफेज अपना फाइनल फेज की भाई हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगेन इट विल कम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी हमारी। ठीक है, meiosis 2 ends with telophase 2 in which two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope cytokinesis। ठीक है, follows the resulting formation of a tetrad of cell, that is 4 haploid daughter cell, 4 haploid daughter cell। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ वी विल जस्ट हैव अ लुक एट द डायग्राम, वी विल हैव अ लुक एट द डायग्राम। देखो जी क्या हो रहा है। प्रोफेज नंबर 1, प्रोफेज नंबर 1 भाई यहाँ पर क्या होना है कि जल्दी से देखेंगे, जस्ट कीप अ फोकस, कीप फोकस की मैं क्या बोल रहा हूँ, कीप फोकस ऑन द वर्ड्स एंड कीप लुकिंग एट द डायग्राम। ना हमने बहुत बार रिपीट कर चुके हैं प्रोफेज 1 में गिन के 3 या 4 चीजें होती है। फर्स्ट थिंग क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, chromosome will start condensing, centromere will start moving towards opposite poles, and the third thing is, and the fourth thing is this क्या बोलते हैं इसको, microtubules, the इनको क्या बोलते हैं, थ्रेड वालों को नाम भूल जाता हूँ यार मैं, स्पिंडल फाइबर, सॉरी स्पिंडल फाइबर, यस स्पिंडल फाइबर निकल जाएंगे सेंट्रोमियर से और वो कहाँ अटैच हो जाएंगे? क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोफेज 1 इज ऑलवेज सेम। तो प्रोफेज में अभी इसमें क्या होगा, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस? इस चीज में क्या होगा कि हमारे जो भी क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सबसे पहले आपस में आएंगे और वो स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे से, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आके चिपक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो ओवरलैप करेंगे, वहां पर क्या चीज होनी है, वहां पर होगी क्रॉसिंग ओवर, वहां पे क्या होगी, वहां पे होगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग सर ओवर, यस सर। सर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब एक बार बता दीजिए ना। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, नॉट आइडेंटिकल, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं, बट एक जैसे दिखने वाले, एक जैसा साइज शेप, ठीक है सर। वो एक साथ आ जाएंगे, है ना, अपने अपने साथी को वो पकड़ लेते हैं, आजा तू मेरे जैसा दिख रहा है तो चल मेरे साथ, ऐसा पेयर्स बन के होमोलोगस क्रोमोसोम हम उन्हें बोल देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, मेटाफेज। कुछ नहीं होता, मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होंगे इक्वेटर पे, हमारे जो ये हैं सेंट्रोमियर हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर निकल चुका है, वो जाके अटैच हो जाएगा सेंट्रोमियर के इसके काइनेटोकोर पे। यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज में, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो खींचने लगेंगे, अपनी लेंथ जो होती है उनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की कम करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है दे विल अगेन स्टार्ट सेपरेटिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे सेपरेट हो जाएंगे। ओके, फिर हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज टीलोफेज 1। टीलोफेज इज ऑलवेज सेम, जो यहाँ होता है प्रोफेज में उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आती है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं। ठीक है, अगेन दिस टीलोफेज एंड्स विद व्हाट, टीलोफेज एंड्स विद व्हाट, साइटोकाइनेसिस। दिस टीलोफेज एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक सेल था, यहाँ पर एक सेल था और 2 सेल बन चुके हैं, अभी यहाँ पर 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट साइटोकाइनेसिस। नाउ these two cells will again enter into these two cells 1 and 2, these two cells will enter into meiosis 2। ठीक है जी, meiosis 2 में एंटर करेंगे वो,
ठीक है। तो उसमें सबसे पहली स्टेज होगी प्रोफेज, सबसे पहली स्टेज होगी प्रोफेज। प्रोफेज में पता ही हमें क्या होना है, सेम चीज, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले डिसॉल्व होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी। उसके बाद हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, बिकॉज जैसे ही वो यहाँ पर जैसे टीलोफेज में आ जाते हैं वो डीकंडेंस होने लग जाते हैं, डीकंडेंस होने लग जाते हैं। डीकंडेंस होना मतलब थ्रेड लाइक फॉर्म में आने लगते हैं। तो यहाँ पर आके फिर से वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, किसके फॉर्म में, सेंट्रो क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब क्रोमोसोम जब वो बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट, न्यूक्लियर एनवेलप हट चुका है, सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे एंड स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर पे। मेटाफेज पे सेंट्रल लाइन पे अलाइन होंगे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। एनाफेज में माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रेच करेगा और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे विल गेट सेपरेटेड, सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे विल गेट सेपरेटेड। नाउ दिस सेल divide into two, this cell divide into two. To end of the day we will get four, end of the day we will get four offsprings, four daughter cells, and that too it will have n number of chromosomes, it will have n number of chromosomes। ठीक है जी, I hope this is clear। We will just have a the significance, and for your understanding the video links are already given in your group। have a look at your group, उस पे देखो, have a look at that video, उसको देखो एक नहीं बार, दो बार, तीन बार, चार बार। you will definitely get the core whole idea कि भाई ये चीज हो रही है। and to write an answer I am damn sure every one of you can definitely write a entire process of meiosis and mitosis, because I think हमने बहुत ज़्यादा बार repeat कर चुका है this stop। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, but we have still invested 1.5 or 2 classes maybe on this, है ना। so, इतना required नहीं था, but yes because I wanted कि ये पूरा concept आपको clear हो जाए, that's why we have invested a lot of time। we have seen the videos, आज हमने यहाँ पे भी वीडियो देखी है, अगेन आई हैव गिवन यू द लिंक्स एज वेल, ओके, वो चीज देख लेना। डेफिनेटली श्योर श्योर इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, अगर इफ आई टेल यू ऑन योर नीट एग्जाम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेटली ऑफ वन क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम फ्रॉम दिस यूनिट। अब यू विल से कि सर एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा यार, एक एक क्वेश्चन इज एंड ऑफ द डे इज व्हाट मैटर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जितना मैंने देखा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, एक या मैक्स टू मैक्स दो, ठीक है, नीट में, आपकी नीट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी स्कूल एग्जाम्स एंड ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ड्रॉ द स्टेजेस ऑफ मियोसिस, ड्रॉ द स्टेजेस ऑफ ये, ठीक है। फिर शॉर्ट डेफिनेशन समवन कैन आस्क यू व्हाट इज चायस्माटा, ठीक है, ये कोई पूछ सकता है। डेफिनेटली डायरेक्टली कोई आस्क, यू कैन आस्क, समवन कैन आस्क व्हाट इज टेलोफेज, ओके। so ये सब चीजें, sometimes there are questions to arrange the following sequence, which stage will come first, prophase or telophase or anaphase or metaphase, okay। 4 मार्क्स का होता है सर, एक क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी येट वेरी स्कोरिंग सब दिस चैप्टर इट इज, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इन दिस वे हमारी जो ये यूनिट है ये खत्म नहीं होती है, वी आर लेफ्ट विद बायोमोलिक्यूल्स एज वेल, वी आर लेफ्ट विद बायोमोलिक्यूल्स एज वेल, राइट। हमारा बायोमोलिक्यूल्स अभी भी रहता है, बायोमोलिक्यूल्स हम करेंगे, not today, today we will start with one of my favorite unit, that is transport in plants। बहुत ही इसकी शीट पूरी बनी नहीं है, आई एम स्टिल मेकिंग इट, दैट्स व्हाई वी विल जस्ट हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द एंटायर चैप्टर एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है, एज आई हैव सम वर्क टू फिनिश, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फर्स्ट आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस एंटायर यूनिट। अभी जस्ट रिलैक्स हो जाओ, अपने पेन वेन छोड़ दो एंड जस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स जस्ट लिसन टू मी, ठीक है, जस्ट कीप योर एंटायर फोकस here and just have a listen, okay। so this unit is unit number 4, we'll be starting with plant physiology। Physiology is related with, like, we have digestive system, we have circulatory system, okay, so all those systems, so what are the systems in plants?
सेम सिस्टम प्लांट्स में क्या चीज है, प्लांट्स डजंट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट्स डजंट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हाउ डज अ वाटर व्हिच वी गिव टू अ प्लांट वो सॉइल से लेके टिल द टिप टिल द लीव्स के स्टोमेटा तक कैसे पहुंचता है, हाउ कम for the small plants we can still understand, but the trees like अशोका अगर आपने ट्री देखा होगा, एनाटॉमी क्या होता है फिर, क्या होता है फिर एनाटॉमी, बताओ दो, आप ही बता दो। You're confused in anatomy and physiology now. सर एनाटॉमी में इंटरनल फीचर्स दिखते हैं ना? इंटरनल फीचर्स देखते हैं, इंटरनल फीचर्स, यस, नॉट द प्रोसेसेस। हम सेल्स पढ़ेंगे एनाटॉमी में, वी विल स्टडी द जाइलम के पार्ट्स, एंड इन फिजियोलॉजी वी विल स्टडी द एक्शन ऑफ जाइलम, हाउ डज जाइलम वर्क, हाउ डज फ्लोएम वर्क, दिस इज द डिफरेंस। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जब एनाटॉमी में हम जाइलम पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड देयर पोजीशन एंड देयर फंक्शनिंग, ओनली जाइलम। बट जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वी विल स्टडी द entire process कि how come when we plant a water, when we water a plant, ठीक है, तो वो पानी वहां से लेके ऊपर तक कैसे पहुंचता है। अगेन सेम थिंग, जब प्लांट फूड प्रिपेयर करता है तो वो फूड रूट्स तक कैसे पहुंचता है या फिर स्टेम तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आ जाती है फिजियोलॉजी में। ओके, ऑल दीज थिंग्स कम्स इन फिजियोलॉजी। लाइक वी रिस्पायर, हम रेस्पिरेशन करते हैं, वी यूज लंग्स, वी यूज नोज। ओके, सेम थिंग, हाउ डज अ प्लांट रिस्पायर, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करता है, तो वो चीज आ जाती है फिजियोलॉजी में। ओके, देन कम्स the process of photosynthesis, how come, what is the internal phenomenon of photosynthesis, how does plastids work, how does chlorophyll comes into action, chlorophyll कहाँ से काम में आता है, ठीक है, what are the photoelectrons, photoreceptors and all the detailed part that we will be covering in this particular chapter. Okay, then again one thing is also required. If you see, definitely all must be having some farm at your ancestral home, गाँव में आपके होंगे farm वगैरह। So if you have seen any crop, if you have seen any crop growing, so definitely your relatives or maybe you yourself must have observed कि बहुत सारे हम externally कुछ ना कुछ हम डालते हैं, लाइक मेन्योर हम डालते हैं, यस मेन्योर हम डालते हैं, एनपीके इज नाइट्रोजन पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, तो ये सब चीजें हम उसमें एक्सटर्नली डालते हैं, ये सब चीजें हम एक्सटर्नली यूरिया, अगर आपने डेफिनेटली यूरिया सबने ऑब्जर्व किया होगा, दैट वाइट कलर्ड थिंग लाइक अ सॉल्ट, यूरिया उसे बोलते हैं, तो यूरिया हम डालते हैं, ठीक है, अमोनिया हम डालते हैं, है ना। As we know, all these nutrients are essential for a plant to grow. All these nutrients are essential for a plant to grow, ठीक है। Then again, just to protect the plant from the other weeds and all, we put weedicides, है ना, weedicides भी हम डालते हैं। So all those, तो इस यूनिट में हम स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ेंगे कि what are the things which plant require for its proper growth. For example, we human beings, so we require proper nutrients, we require proteins, we require nitrogen, phosphorus, potassium, correct? Yes, we require what, proteins, carbohydrates and all, ठीक है, हमें ये सब चीजें लगती हैं। तो सेम गोज विद प्लांट्स एज वेल। अब प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि प्लांट्स को हमें ये पता करना है कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिशन लगते हैं, पहले क्वेश्चन हो जाता है ये। देन अगेन वी विल सी कि ओके, सो ये न्यूट्रिशन उसको लगते हैं, हाउ मच ऑफ दीज, इनमें से कौन से न्यूट्रिशन प्लांट्स खुद ऑब्जर्व कर सकता है, खुद ऑब्जर्व कर सकता है रूट से, सॉइल से, ठीक है, और इसमें से कौन से हैं जो हमें एक्सटर्नली उसको और देने पड़ेंगे, कौन से हैं एक्सटर्नली देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल वी सी नाइट्रोजन, तो वी सी कि ओके, नाउ द सॉइल कंटेंट, हम चेक करेंगे कि ओके हमारी सॉइल कंटेंट में नाइट्रोजन की कमी है, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज ओके, व्हाट वी हैव टू डू कि हमें नाइट्रोजन एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सेम चीज फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट हैपेंस
हमारे में प्रोटीन्स की कमी हो गई तो इट लीड्स इनटू सम एक्शन, हमारे में कैल्शियम की कमी हो गई तो इट लीड्स इनटू सम डिफिकल्टी विद इन योर बोन्स एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसे ही व्हाट ऑल विल द डिफिकल्टीज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स इफ there is a scarcity of any of the element. For example, if there is no nitrogen or if there is a scarcity of nitrogen, what is the action which plants takes? Plants में हम क्या वो चीज ऑब्जर्व करेंगे कि उससे हमें पता चले कि हाँ यार इसके अंदर नाइट्रोजन कम है, ठीक है। सेम गोज की अगर पोटेशियम कम हो गया, तो प्लांट्स उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। प्लांट उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, डज ही इज ही एबल टू सर्वाइव, कि वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एंड ऑल, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, येट इट इज अ वेरी 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 बिट ऑफ चैलेंजिंग चैप्टर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट द पहला चैप्टर इज वेरी इजी, इसमें there is only one concept which is very tough, which we will be doing in the next class, that is the pressure flow hypothesis. If you get time, in this entire week, just have a read of the last topic. I will just tell you the page number in transport in plants. I will tell you the page number. Wait. Yes, it's page number 191. Mark it down. Just read page number 191. This is called as the pressure flow hypothesis or the mass flow hypothesis. ठीक है, it's very easy, बहुत easy है। अभी थोड़ा challenging लगेगा आपको, but जिस वे से इसको मैं पढ़ाऊंगा, no one will teach you, और बहुत easy बना दूंगा concept आपके लिए. That is my words. Okay, this is that will be the last topic for this. ये हम next class में करेंगे. Okay. So this was the entire unit about this transport in plants or plant physiology, what we call it, plant physiology. It's a very interesting topic or a subject. ठीक है, इसमें there were five chapters. We will start with transport in plants, then is a mineral nutrition, which is very easy, but it is very difficult to remember all the mineral nutrition required. It is very difficult, but the weightage is also less for that particular chapter. इसमें से maximum questions will come from photosynthesis and respiration. Chapter number 13 and 14, maximum questions. Some questions will be there from transport in plants. I think last time pressure flow hypothesis was asked in your NCRT, not your school के papers as well, UT and all, and in your final papers as well. ये पूछा गया था, ठीक है। So we will finish this entire unit, and then, as I have told you, after finishing all these 1, 2, 3, 4, 5 chapters, then we will move to the rest of the chapters which we have left earlier, starting from animal kingdom, then structural organization in animals, and then biomolecules. These 3 chapters, and then the last unit. Okay, so we will start with transport in plants. Just give me 2 minutes. Okay, sure, let's start. थोड़ा सा ये we will just do it, the introduction part we will do it, and then the main topic we will do in the next class. So what do you understand by transport in plants? For example, in humans we have in humans, or if you can say in animals हम क्या बोल सकते हैं कि we have a proper mechanism of transportation. We have blood जो हमारी मोस्टली सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ से वहाँ, है ना, ऑक्सीजन एंड ऑल, जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है, ब्लड इज द मीडियम जिससे पूरा चीज ट्रांसपोर्ट होती है. We have veins, veinlets, and everything we have heart which continuously pumps the fresh blood into the body and all, ठीक है, वो सब चीजें हैं. But in case of animals, do we observe any kind of organ? Do we observe any kind of a system in plants? Have you ever seen any kind of a system in plants? Like if you switch on that button and then the transport and all, everything is
अंडर प्रोसेस नहीं, ऐसा नहीं होता है प्लांट्स के केस में। प्लांट्स के केस में देखो, इनिशियली जब ये लोग पता कर रहे थे कि ये हाउ डज, ये छोटे प्लांट्स तो चलो ठीक है, अगर छोटे प्लांट्स तो अगर आपने देखा होगा, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, अगर कम हाइट होती है और नैरो ट्यूब होती है ना, तो पानी कैपिलरी में अपने आप राइज करने लग जाता है। कैपिलरी तो कैपिलरी एक्शन हम बोलते हैं। इफ देयर इज अ नैरो फाइन ट्यूब and if you dip it in water, the water will automatically rise, but that happens only for a short duration, that happens only for a short distance as well. Okay, but the thing which we observe is we have plants like ashoka jo itte heighted hote hain, we have plants like coconut jinki itni height hoti hai. How come a water goes to that height without using an external pump or something? For example, if you observe a normal coconut tree will be around a 2 to 3 floor ki building. For a 2 to 3 floor ki building, you will require a big size motor to pump your water onto the upper tank. Then it comes naturally down through your pipes. But does coconut tree have anything of such kind of a motor or anything? नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि डायरेक्टली लीव्स ही पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, नहीं यार, लीव्स नहीं करती है। कौन है करता, तो रूट्स ही है, रूट से करके, एंड मेन फ्रूट जो बन रहा होता है कोकोनट का, इट इज इन दैट हाइट। ओके, तो डेफिनेटली प्लांट्स हैव सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म, maybe they do not have an organ, they do not have a system, but yes, they have something, they have a mechanism to transport all these things, to transport the materials from top to bottom and from bottom to the top, है ना, they have some mechanism. तो ये चीज हम observe करेंगे कि कैसा वो mechanism है. Now we will see some kind of means of transport. We will see कि different kind of transport, one is active, one is passive. Plants के case में कौन सा use होता है, क्या कहाँ क्या use होता है. Okay, we'll just read the first introductory part. Since the plant do not have a well-organized circulatory system as found in higher animals, they perform the process of transportation of material in slightly different way. They have a different mechanism. In plants, these materials are gases, minerals, waters, hormones, photosynthetes यानी जो भी part photosynthesis के लिए जो भी raw material लगता है, photosynthetes बोलते हैं उसको, organic solutes. They are needed to be transported to short distance as well. छोटे distance पे भी हमें भेजना है, and also the longest distance. बड़े distance पे भी भेजना है. Long distance transportation occurs mainly through what? Xylem phloem. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम किसको बोल सकते हैं, अगर एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई सामान भेजना है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ओके, एक सेल से दूसरे सेल, जस्ट बाजू में ही तो है वो सेल्स, प्लाज्मोडेस्माटा, इफ यू रिमेंबर दैट स्मॉल ओपनिंग जो इंटरकनेक्टेड रहती है दो सेल्स को. और यू कैन से अ स्मॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम maybe from the intercellular spaces inside a cell, intercellular spaces से होते हुए किसी सेल के अंदर घुसना, that you will consider, you will call it a short distance transport. Okay, and long distance transport आप किसको बोलोगे कि फॉर एग्जांपल रूट से लेके लीव्स तक अगर किसी चीज को जाना है, या फिर लीव से लेकर रूट्स तक किसी चीज को जाना है, that you will consider as a long distance transport. Okay, so now we will just see the means of transport, like what all are the means जिससे plants चीजें ट्रांसपोर्ट करता है. तो उसमें से पहली चीज है डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. जिसमें एनर्जी नहीं लगती. यस, जिसमें एनर्जी नहीं लगती. पैसिव ट्रांसपोर्ट इज बाय डिफॉल्ट. अ पैसिव ट्रांसपोर्ट विल डेफिनेटली बी फ्रॉम डैश ग्रेडियंट टू अ डैश ग्रेडियंट. जस्ट टेल मी. Diffusion is from dash gradient to a dash gradient. देखो, सबसे पहले ये चीज आप अंडरस्टैंड करो कि diffusion is without energy use, without the use of energy. अब without the use of energy अगर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो it will require a gradient. अब gradient मतलब क्या होता है? Some kind of a imbalance. मतलब for example, if there is imagine there are two cups interconnected by a small pipe, and one cup is entirely full and the other cup is a little half. So what will happen is इसका जो भी पानी है through that pipe will definitely come in this. कब तक आएगा? जब तक दोनों का पानी इक्वल नहीं हो जाता, and equilibrium is not attained. And equilibrium is
नॉट अटेन, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो सुना होगा। यस सर। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप सर व्हाट इज ग्रेडियंट? ओके, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट देखो, ग्रेडियंट उस चीज को बोलते हैं if something is in a higher quantity and if something is in a lower quantity, so there is a gradient between them, there is a gradient, there is a difference between them. So for example देखो ना, higher concentration to lower concentration, ये आप समझते हो। higher concentration, something is in higher concentration in this, यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड है and in this something is of in a lower concentration, कम क्वांटिटी है, ये पूरा भरा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट, बाय नेचुरल वे क्या होगा कि यहाँ से जो पानी है वो यहाँ से आ जाएगा until equilibrium is attained, until दोनों में इक्वल पानी नहीं हो जाता है, because they are connected through a pipe. Yes, gradient is the difference. Gradient मतलब is the difference, correct. ठीक है, तो जो डिफ्यूजन जो होता है, जो मेरा मेन पॉइंट है बताने का, जो डिफ्यूजन होता है इट इज बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी। एंड जब भी कोई चीज बिना एनर्जी होगी तो वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट कभी नहीं होगी। अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब फ्रॉम अ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, मतलब अगर इमेजिन करो मेरे पास दो ग्लासेस हैं, इमेजिन करो दो ग्लासेस हैं, वो एक पाइप से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक पाइप से कनेक्टेड है, इसमें पानी थोड़ा है और इसमें इतना है। ठीक है, अब नेचुरली क्या होने वाला है कि क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है वो यहाँ पर आ जाएगा। बट अगर मुझे ये मान लो B है, अगर मुझे A है, A से B पानी तो इजीली चला जाएगा, A से B पानी इजीली चलेगा। व्हाई? बिकॉज A का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, A में पानी ज्यादा है और B वाली बकेट में पानी कम है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन मुझे B से A में पानी भेजना है, तब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे अभी यहाँ पे इनके बीच में ग्रेडियंट है, अगर along the gradient तो easily transfer हो जाएगा पानी, along the gradient easily transfer हो जाएगा because there is a difference between them. But what will happen जब मुझे against the gradient भेजना होगा, against the difference हमें मुझे भेजना होगा। B में पानी डालने से कुछ नहीं होगा। B में पानी कब तक डालोगे? जब तक, फिर भी वही होना है, B में पानी डालोगे तो इक्विलिब्रियम ही अटेन हो सकता है, मैक्स टू मैक्स इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। A में पानी नहीं जाएगा, A में मुझे बढ़ाना है पानी, B से ज्यादा लाना है। अप्लाई प्रेशर, यस अप्लाई प्रेशर। आप यहाँ पे एक पिस्टन लगाओगे, पिस्टन लगाना पड़ेगा सर। यस, पिस्टन लगाओ, मोटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे। अब यहाँ से प्रेशर जब मारोगे तब ये पानी इस पाइप से होते हुए यहाँ जाएगा और यहाँ पे बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द अगेंस्ट द ग्रेडियंट फ्लो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। एंड टुवर्ड्स द ग्रेडियंट इट इज फ्री ऑफ एनर्जी। अगर टुवर्ड्स द ग्रेडियंट आपको भेजना है तो आपको एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी। बट आपको अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट भेजना है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट भेजना है मतलब किसी चीज को लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में भेजना है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई नीचे बिल्डिंग के नीचे जो टंकी है उससे ऊपर अगर पानी भेजना है तो यू विल रिक्वायर प्रेशर। बट अगर ऊपर से नीचे लाना है तो आपको प्रेशर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर दे आर ऑलरेडी एट अ हाइट, दे आर ऑलरेडी एट अ हाइट। वो हाइट की वजह से ऑलरेडी उसको एक प्रेशर अब बाय डिफॉल्ट मिल चुका है। व्हाई? बिकॉज वो हाइट पे है, तो उसको अभी वहां से मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो डिफ्यूजन जब भी होता है, ये चीज याद रखना, जब भी डिफ्यूजन होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ अ लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन से एक लोअर कंसेंट्रेशन पे होगा ये चीज। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे होगा हमेशा डिफ्यूजन। ओके, just we will just have a read कि diffusion क्या होता है। movement by diffusion is passive you understand is without the expenditure of energy and may be from one part of the cell to the other। ठीक है, because देखो एनर्जी यूज नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भेज सकते हो किसी चीज को। एनर्जी जब तक आप नहीं डालोगे तो आप किसी भी चीज को लॉन्ग डिस्टेंस आप नहीं भेज सकते हो। तो शॉर्ट डिस्टेंस ही डिफ्यूजन कवर कर पाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ही डिफ्यूजन कवर कर पाता है। यूजुअली जो रूट से पानी रूट के जाइलम तक आता है ना, दैट कम्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आई? कुछ चीज लिंक कर रही है यहाँ पे। आपका सिर्फ एनाटॉमी बहुत काम में आने वाला है। अगर आपको एनाटॉमी नहीं समझ में आया हुआ है यहाँ पर, देन यू विल गेट रियली कंफ्यूज। तो आई होप आप लोगों का एनाटॉमी पूरा क्लियर है एंड आपने रिवाइज भी उसको अच्छे से किया हुआ है। तो अगर आपको एनाटॉमी क्लियर है तो जैसे ही मैं रूट बोलता हूँ
तो यू विल ऑब्जर्व, यू आपके दिमाग में वो डायग्राम आ जाना चाहिए कि रूट है, रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स पानी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और वो रूट हेयर्स से वो कहाँ पर आ रहे हैं भाई पानी, वो आ रहा है रूट के जाइलम तक। रूट में भी जाइलम होता है, रूट में भी फ्लोएम होता है। तो रूट से लेके रूट के जाइलम तक आने में, रूट से लेके रूट के जाइलम तक आने का जो भी फ्लो होता है दैट इज डिफ्यूजन। वाई डिफ्यूजन, अब मैं बताता हूँ वाई डिफ्यूजन। देखो अगर कोई प्लांट आपने लगा दिया सॉइल के अंदर, अब ठीक है, अब सॉइल में तो पानी रहता है यूजुअली, ठीक है, सॉइल में आपने मान लो पानी दे दिया, अब डायरेक्ट रूट पे पानी नहीं डालते हो, आप सॉइल पे डालते हो, सॉइल से फिर रूट ऑब्जॉर्व करता है पानी। ओके जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब आप सॉइल में पानी डालते हो, और जब, और ठीक है आपने सॉइल में पानी डाला, बट अब अभी चल रहा है मान लो समर, अभी नहीं, मान लो एग्जांपल में चल रहा है समर, समर चल रहा है, तो देयर विल बी ह्यूज ट्रांसपिरेशनल लॉस। ट्रांसपिरेशनल लॉस आपको समझ में आया? ट्रांसपिरेशन, करेक्ट करेक्ट, हाँ वेरी गुड। ट्रांसपिरेशनल लॉस समझ में आता है? क्या होता है ट्रांसपिरेशनल लॉस? जैसे इवेपोरेशन, हमारे स्वेट आ जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, इस सेम केस इनमें ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा से पानी लूज करना जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर। स्टोमेटा से जो पानी लूज होता है उसको ट्रांसपिरेशनल लॉस बोलते हैं। अब नाउ बिकॉज देयर इज अ ट्रांसपिरेशनल लॉस कंटिन्यूअसली हैपनिंग, सो अंदर प्लांट के अंदर पानी की हो जाती है कमी। क्या हो जाती है? प्लांट के अंदर हो जाती है पानी की कमी। अब प्लांट की अंदर हो जाती है कमी, दैट मीन अंदर है क्या है? लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना? बट सॉइल में बहुत पानी है, सॉइल में देयर इज अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लांट बिकॉज कंटिन्यूसली पानी इवेपोरेट कर रहा है, लीव से कंटिन्यूसली पानी इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है, मान लो स्टोमेटाज आर ओपन है, पानी कंटिन्यूसली लूज कर रहा है प्लांट, ठीक है, तो अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट के अंदर। प्लांट की एग्री कर रहे हो? पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, समझ रहे हो? यस और नो प्लीज कंफर्म। प्लीज कंफर्म बोलो। यस और नो? यार कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? सुन रहे हो तो यार रिस्पॉन्ड करो ना, मुझे लग रहा है कि आवाज ही नहीं पहुंच रही है मेरी। सब सो गए क्या? यस एग्जैक्टली, वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है। वैक्यूम क्रिएशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन डेफिनेटली से कि अंदर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना यार, अगर जैसे एक प्लांट है, कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशनल लॉस हो रहा है, तो प्लांट में कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशनल लॉस हो रहा है, उसका पानी कंटिन्यूसली स्टोमेटा से निकला जा रहा है, तो अंदर उसके पानी की कंसेंट्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सेम थिंग गोज विद यू यार। अगर आप धूप में मान लो आप खेल रहे हो, ठीक है, बिकॉज आपका इवेपोरेटिव लॉस हो रहा है, बिकॉज यू आर स्वेटिंग एंड स्वेट इज गेटिंग इवेपोरेटेड, सो आप, आपको थर्स्ट होता है कि नहीं? पानी पीने का वो होता है कि नहीं? हाँ, अभी थक गया हूँ, अभी पानी पीना है, होता है आपके साथ। तो सेम थिंग होती है प्लांट के साथ भी। तो आप क्यों पानी पीते हो? बिकॉज आपके अंदर पानी का कंसेंट्रेशन हो जाता है कम, इसलिए आप एक्सटर्नली पानी ले लेते हो। सेम गोज विद प्लांट्स एज वेल। अब प्लांट्स में क्या होगा, जैसे ही ट्रांसपिरेशनल लॉस शुरू हो जाता है एंड अंदर, प्लांट के अंदर पानी की कमी हो गई, प्लांट के अंदर पानी की कमी हो गई, तो प्लांट क्या करता है? तो प्लांट क्या करता है, क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल इज रिच इन वाटर, सॉइल के अंदर पानी है, मान लो नहीं है तो इट्स अ डिफरेंट कंडीशन, नहीं है तो इट्स अ डिफरेंट कंडीशन, देन प्लांट विल डेफिनेटली डाई। बट यस, अगर मान लो सॉइल के अंदर पानी है, सॉइल के अंदर पानी है, तो आई एम टेलिंग यू अबाउट डिफ्यूजन। कब तक होगा डिफ्यूजन? तब तक ही होगा कि सॉइल रूट हेयर से वो पानी लेगा, बिकॉज रूट हेयर्स आर वेरी माइन्यूट ना, रूट हेयर्स आर वेरी माइन्यूट। तो शॉर्ट डिस्टेंस, जिस हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हो, कितना शॉर्ट डिस्टेंस है वो देखो, कि एकदम जैसे रूट हेयर है, रूट हेयर के जस्ट चिपक के जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे। अंदर क्यों आएंगे बताओ मुझे, अंदर क्यों आएंगे? रूट हेयर के अंदर कैसे पानी आ जाएगा? जस्ट टेल मी, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो। एनीवन?
yes, no. My question is कि देखो, अगर रूट है, रूट हेयर सॉइल से पानी कैसे लेगा और उसमें पानी क्यों आएगा? At the stomata of the higher leaves in some trees, the liquid pressure is 15 atmosphere, which is enough to pull water up to a height of 150 meter. आप बहुत आगे चले गए हो प्रतीक, बहुत आगे चले गए हो. हम सब आएंगे उस टॉपिक पे, हम सब आएंगे उस टॉपिक पे. That's a different thing. Yes, that is easy. There are n number of theories कि ये पानी ऊपर कैसे पहुंच रहा है, वही चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. But my question is, for now, my question for now is कि जो रूट हेयर से पानी अंदर क्यों आएगा, व्हाई नॉट रूट से पानी बाहर जाए? माय क्वेश्चन इज दिस, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू क्लियर द टॉपिक ऑफ डिफ्यूजन फॉर नाउ. yes, that is what the answer I was looking for. भक्ति, very good. क्योंकि ट्रांसपिरेशनल लॉस की वजह से, ट्रांसपिरेशनल लॉस की वजह से अंदर पानी की कमी हो गई है. अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस. ऑन द सेम हैंड वाटर में, ऑन द सेम हैंड इन द सॉइल the water concentration is high, and diffusion is what? Higher water concentration to a lower water concentration. What will happen is water molecules जो just root hair के side में होंगे, that will come in root hair के अंदर आएगा, वो root hair के अंदर आएगा. It will pass the epidermis, endodermis, cortex, and definitely it will go towards what? Xylem. And जैसे ही वो जाइलम पे रीच कर जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो मूव कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर पुल, उसके वजह से वो थोड़ा बहुत कर सकता है, बट वो ज्यादा हाइट पर नहीं जा पाएगा, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज डिफ्यूजन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है. अगेन बिकॉज एनर्जी यूज नहीं हो रही है, द प्रोसेस इज वेरी स्लो. प्रोसेस इज वेरी स्लो, ठीक है. उसके बाद मोस्टली हम किस चीज में हम देखते हैं कि गैसेस ज्यादातर डिफ्यूज करती है, लिक्विड ज्यादातर डिफ्यूज करते हैं, सॉलिड यूजुअली डिफ्यूज नहीं करते हैं. तो लिक्विड एंड गैस में ये हमें बहुत इजीली ऑब्जर्व होता है, ठीक है. एंड अब बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन. जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस है कि बाहर पानी बहुत ज्यादा है और अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो जितना कंसंट्रेशन है उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा. जितना डिफरेंस है उन दोनों में, उतना ही फास्ट डिफ्यूजन होगा, ठीक है. आप लोग मुझे एक बार अटेंडेंस दे दो अपनी, एंड देन आई थिंक टाइम इज ओवर, वी शुड स्टॉप, एंड बाकी हम कल करेंगे. जस्ट गिव योर अटेंडेंस नाउ.